بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے بزرگ مہمانان گرامی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کے محترم ڈپٹی رجسٹرار این فارغ رشید صاحب اور جناب پرویز اقبال صاحب اور معزز ہمارے ایگزیکٹیوز، معزز کاروباری برادری، ہمارے لیڈران یہاں پہ تشریف لائے، سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں گزارش چاہوں گا کاموں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. بہت خوشی ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اسے سیمینار کا حصہ بنے. آج کا موضوع ایس سی سی پی کے ڈیجیٹل اقدام ایز فائل کے ذریعے کاروبار کی رجسٹریشن ہے. یہ ایک نہایت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے، خاص طور پر ان تمام کاروباری حضرات کے لیے جو اپنی کمپنیز اور بزنس کو رجسٹر کروانے کے خواہشمند ہیں اور اس حوالے سے جدید ڈیجیٹل سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہمارے مہمانان گرامی این فارغ رشید صاحب اور پرویز اقبال صاحب آپ کو نہ صرف اس فائل کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کریں گے بلکہ اپنے سوالات کا جواب بھی دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسان اور ایزی ہو جائے. گجرات چیمبر ہمیشہ اپنے رکین اور کاروباری برادری کے لیے ایسی معلوماتی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی ایسے موقف آپ لوگوں کو فراہم کرتے رہیں گے. آخر میں بطور بزرگ کام کا دل سے مسکون ہو قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے اور میں گزارش کروں گا این فارغ رشید صاحب سے، پرویز اقبال صاحب سے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بریف کریں. جی السلام علیکم جی. ایک تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. کافی عرصے کے بعد یہ کوآرڈینیشن ہے ہمارا ایس سی سی پی کا اور ہم نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا ہے کوئی اس فائل. آپ کاروباری برادری بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کوشش سر یہ ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد سنگیار سے بھی ڈسکشن ہوئی کہ جو پرابلم آ رہی ہے بعض بار گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں اور کاروباری میں ہوتی ہے کمیونیکیشن گیپ ہے. ظاہر ہے اس کمیونیکیشن گیپ کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو ایز آف ڈوئنگ کے لیے تاکہ آپ ایک فون کال پہ ہمارے ساتھ اویلیبل ہوں، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہوں، اگر آن لائن واٹس ایپ پہ ہیں تب بھی ہمارے ساتھ آپ آن لائن. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں پچھلے 2020 سے ہم نے ذہن دی ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی کمپنیز ہیں، نئی کمپنی جو بھی صاحب کارپوریٹ سیکٹر میں آنا چاہتا ہے، چاہے وہ سنگل ممبر کمپنی ہے یا ایک سے زیادہ جو لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا پبلک کمپنیز ہیں، ان سارے پروسیس کو ہم نے ایک تو ڈیجیٹلائز کیا ہے. آپ کے نام لینے سے لے کے بینک اکاؤنٹ اوپن ہونے تک ایس سی سی پی کی جو کاپیز ہیں، ایس سی سی پی کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آن لائن ہے. سر دو کانسیپٹس ہیں جو ہم کلیئر بھی کرنا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے اور باقی لوگوں سے بھی کہ دیکھیے ایک ہمارا بزنس سینٹر ہے اسلام آباد میں جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں پورے پاکستان کی جو نئی کمپنیز ہیں وہ بنتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے آ جائیں ہیں. دوسرا ہمارا ایک کمپنی رجسٹریشن آفس ہے جو کمپنی بننے کے بعد کی فائلنگ کو دیکھتا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ آج فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ ہم آپ کو جو پورا پروسیس ہے ہمارا کمپنی بننے کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کی کوئی کمپنی بننے پہ کوئی کیوری ہے تو وہ آپ ہم سے کیوری کریں. اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو سبسیکوینٹ فائلنگ ہے آپ لوگوں کی کسی بھی ڈاکومنٹ کی وہ ہمارا رجسٹریشن آفس لاہور دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایک سیشن آپ کو کروا دیا جائے تاکہ اوور آل. اور ہم آج آپ کے ساتھ آپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کے سیکرٹری صاحب بھی ہیں. ہم بزنس سینٹر اسلام آباد کا جو فنکشن ہے، جو کمپنی بنانے کا فنکشن ہے، اس کے ہر آفیسر کا نمبر ای میل آپ سے شیئر کر کے جا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو ایون آپ کے بچے ہیں، آپ کے جو دوست ہیں جو کمپنی بنانے کے پروسیس کو بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے شیئر کیجئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تاکہ اگر کہیں پہ انہیں کوئی مشکل نظر آتی ہے، جہاں پہ انہیں کوئی پرابلم نظر آتی ہے، بجائے سے کہ وہ چیمبر تک بھی آئے، ہم یہ نہیں چاہتے. وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے کال ملائیں، جہاں پہ جس پروسیس پہ انہیں پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ہم سے اسیس کریں. اور اتنے بڑے شہر میں بڑی عجیب سی بات ہے، پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ کوآپریٹ ممبر 200 ہیں. اگر آپ اوور ایک اسٹرکچر کو سب دیکھیں، حالانکہ ایف بی آر اپنا الگ ادارہ ہے ہم سے، لیکن دیکھیں اسمال کمپنیز کے کانسیپٹ میں تو 20% ٹیکس ہے نا سر. اب 20% ٹیکس آپ تبھی دینا ہے آپ نے جب آپ نے کچھ کمانا ہے. اور سب سے بڑا کانسیپٹ تو دیکھیے کمپنی بنانے کا فائدہ کیا ہے. کبھی کسی گورنمنٹ کانٹریکٹ میں آپ نے جانا ہے، کبھی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے، کبھی کسی بینک سے لون لینا ہے، تو آٹومیٹکلی بغیر کارپوریٹ سٹرکچر تو آپ سے نہیں آتا.
عام طور پہ میری پوسٹنگ رہی ہے فیصلہ آباد میں، پرابلم وہ بھی یہی ہے کہ ہم رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اب سب سے بڑا آپ سے ذہنت یہ ہے کہ جب ٹیکسیشن میں بھی آپ کو ایشو نہیں ہے، اور ہماری جو کمپنی بننے کا جو پورا پروسیس ہے سر، میکسیمم 4 گھنٹے. ہماری گزارش یہ کہ 4 گھنٹے میں آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہا ہے، 4 گھنٹے میں آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کاپیز ایشو ہو رہی ہے. آپ بینک جائیں، ہمارا پورٹل ہے سر. آپ میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جو ہے کوئی پروسیس 4 گھنٹے میں نہیں ہوتا. وی انشور یو کہ پچھلے کانسیپٹ ہے ہمارا کہ آپ لوگوں کو 4 گھنٹے میں کمپنی بنا کے دے رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے، آپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور چاہے یونیورسٹی کے ینگ گریجویٹس ہیں، ای کامرس بزنس ہے، چاہے کوئی بھی بزنس ہے، پہلے اس کو ذرا دیکھیں، اور جہاں پہ آپ کو پرابلم نظر آتی ہے ہم حاضر ہیں. جسٹ وی ہیو گیون دا گلمپس کہ ایک جو پروسیس ہے وہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے، آپ لوگ لیکن سر ہمیں سب سے بڑا پرابلم اور ہے، میں ہم سب پریکٹیکلی جا رہے ہیں کہ اتنے بڑے شہر میں اتنے ایزی پروسیس کے ساتھ 200 کارپوریٹ ممبر کا ہمیں کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا نا سر. وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ 200 کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ نہیں آتا اتنے بڑے شہر میں. ینگ گریجویٹس اویلیبل ہیں، یونیورسٹیز اویلیبل ہیں. لیکن سر اوور آل پھر بھی ایک گجرا والا جو اوور کمپنیز میں دیکھیں نا بہت کم ہے. میں نے اصل سے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں شہر اسلام آباد سوائے پہاڑوں کے اور 4 پلازوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہاں پہ جتنے ینگ گریجویٹس ہیں آن لائن بزنس کر رہے ہیں. دیکھیں بزنس تو ینگ گریجویٹ آن لائن ہی کرنا ہے سر، فزیکل انسٹالیشن والا تو معاملہ ہے نہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن. ہمارا کام سب صرف اتنا سا ہے کہ ہم آپ کو میکسیمم سینیٹیشن آپ کے ڈورز کرتے ہیں. ہم حاضر ہیں. یہ سب دیکھ لیجیے گا جو ہمارا اسٹیٹسٹ ہے اس وقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2020 سے 24 کا کوئی 124% انکریز، 127% ہمارا انکریز ہے. اور یہ ٹرینڈ ہم چاہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں بھی ہو سکے. ہمارے پاس نمبر ہم نے کیلکولیٹ آپ کی ہاتھ نہیں ڈالے کہ اوور آل نمبر ڈالے، ڈسٹرکٹ ویلیو ڈالے، لیکن کم ہے سر ایز کمپیریٹیولی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سب کی اسٹریٹجی سر. ایک تو ہمارے پاس ایک اور ذہنت بھی آپ کو ہے کہ نارملی تو کمپنی کا کانسیپٹ آتا ہے، آج ہم نے ایک اور بھی کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ. جیسے آپ رجسٹر فارم کے پاس جاتے ہیں، ایگریمنٹ بناتے ہیں اور رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم اس کا کمپیریٹیو آپ لوگوں کو دیا ہے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کے تحت. یہ بھی اور سب سے بڑی کوالٹی اس میں کانسیپٹ میں یہ ہے، آپ ایک دفعہ لمیٹڈ لائبلٹی ایگریمنٹ کے ساتھ بنائیں، ایس سی سی بھی پوری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی کمپلائنس نہیں ہے. آپ بنائیں اپنا بزنس اسٹارٹ، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے کمپیریٹیو یہ لیا تھا کہ نارملی لوگ جا رہے ہیں رجسٹر فارم کی طرف کہ جی دیکھیں جی ایس سی سی پی کو آپ ریٹرن بھی دیں. اگر آپ ریٹرن پہ نہیں آنا چاہ رہے تو آپ سمپل ایل ایل پیز بنا سکتے ہیں. اور اس سارے بعد جو چیز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیے، اس بندے کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. گھر نہیں بکتا. دیکھیے میرا لاس ہوا میرے انڈیویجول بزنس میں، میرا گھر بھی انوالو ہے، میری ساری جمع پونجی انوالو ہے. لیکن کمپنی میں جس حد تک آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے وہ آپ کا لاس ہے. دس از دا موسٹ پروٹیکٹیو ہے دنیا میں. پاکستان کی تو جیسے بیڈلک ہے، دنیا میں تو بزنس جو ہے سر بغیر کارپوریٹ اسٹرکچر کے نہیں ہوتا. کوئی بندہ اتنا بڑا لاس اٹھانا نہیں چاہتا. یہ سر اب پروسیس میں آپ کو سمپل آپ دیکھیں، آپ بچے بھی آپ کے ہیں، فیملیز ہیں، اگر گھر میں بیٹھ کے بچہ بنانا چاہ رہا ہے، سمپل ہمارا ایز فائل پہ جائے، گوگل سرچ کریں، ایز فائل ڈالیں، ایز فائل پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے 4 سٹیپس ہیں. بیسک سٹیپ میں 10 منٹ میں کمپنی بنتی ہے. یو کے یو ایس میں لگا رہے ہیں کمپیریٹیو. میں نہیں کہتا کہ شاید آگے ہوں لیکن کمپیریٹیو بھی رائٹ. سب سے پہلے جتنے ڈائریکٹرز ہیں آپ کے، اگر سنگل ممبر بنانی ہے تو ایک شخص ہوگا اور ایک اس کا نامینی جو بلڈ ریلیشن، وہ اپنا یوزر رجسٹر کروائے ایس سی پی پہ 1.5 منٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کمبائن اپلیکیشن اویلیبل ہے ہماری، اس میں ڈیٹا فل کریں. آپ کا جو ڈیٹا ہے رجسٹرڈ آفس کیا ہے، ڈائریکٹر کون ہوگا، یہ ڈیٹا فارم فل کریں. ہمارا ہم نے بڑے لڑ جھگڑ کے جو ہے نا جی 2017-18 میں ابھی آپ سے کہا تھا کہ جی جو ہی کمپنی بنے
तो साथ इसका एंटी इशू हो, एफबीआर में जाके एंटी लेना इज नॉट इजीएस्ट वे। तो जो ही आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चाहे सिंगल मेंबर हो प्राइवेट हो, जो ही कंपनी बनती है सर आपका एंटी इमीडिएट इशू होता है, साथ ही आप कैंटीन है। इसी तरह जब आपका ये डाटा आप एंटर हो और प्रोसेस सबमिट आप एससीसीपी में करते हैं, डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट करें 4 घंटे में, हम मैक्सिमम बता रहे हैं, आप आधे पौन घंटे में कंपनी बना के आप भिजवा देते हैं। वो आती है बैंक में जाए, बैंक में हमारा पोर्टल शेयर है ऑल द मेजर बैंक के साथ। सर्टिफाइड कॉपी आपके पास अवेलेबल है, जिस डिपार्टमेंट को देना चाहे, और उस सर्टिफाइड कॉपी की जो लाइफ है वो लिमिटेड है। एक दफा कॉपीज ले लें जिस मर्जी इदारे को आती है, इसको आगे करो। और हमें सर जरूरत क्या है, सिंपल एक सीएनआईसी हमें चाहिए। सीएनआईसी आपने सिस्टम में अटैच करना है, सीएनआईसी पे यूजर रजिस्टर आपने करना है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। ये सर है जो वेबसाइट पे दिखा रहे हैं। जब आप इस फाइल में हमारे इसी फाइल पे आते हैं तो सिंपल ये है कि आप लॉगिन जनरेट करें, अपना आईडी कार्ड नंबर डालें, 2 कोड्स आपके पास जाते हैं, एक सेल पे और एक ईमेल, दोनों सिस्टम में डालिए। जैसे याहू में हर बंदा बना रहा है, ठीक है, ये साइन अप हुआ। आपने किसी भी एक शख्स से सर डाटा एंटर करना है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट आपके एक डाटा की बेस पे ऑटो जनरेट होते हैं, आपने कुछ नहीं करना, यू आर फ्री। ऑटो जनरेट होंगे, आपने सिंपल सीएनआईसी कॉपी अटैच करें, प्रोसेस सबमिट करें, ऑनलाइन मोबाइल पे घर बैठे पेमेंट कीजिए, आधे घंटे पौने घंटे 2 घंटे बाद कंपनी का सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, तो कुछ चलान नंबर इशू हो सर उसके है क्या पेमेंट डिफरेंट ऑप्शन है, ओवर द काउंटर भी आप कर सकते हैं, इसको आप इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, बैंक बैंकिंग ऐप से आप एटीएम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड सारी ऑप्शन है। चलान इशू हो सकता है, वो चलान जाके बैंक में बीएस आईडी से आप इजी पैसा कर सकते हैं, ओवर द काउंटर आप लेना चाहें वो भी आप उसका प्रिंट आमतौर पर सर सारे जो बैंक्स हैं, अब हम देखते हैं 1 लाख की फैसिलिटी कितने टाइप की कंपनीज हैं, एक आप कह रहे हैं हमारे सर है। देखिए अगर आमतौर पे लोग झगड़ों से आजकल बचना चाहते हैं तो आमतौर पे वो सिंगल मेंबर बनाते हैं, एक ही डायरेक्टर है, वही ओनर है कंपनी, सीईओ भी वही है, एक मेंबर। ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जाहिर है क्योंकि सिंगल मेंबर होता है इसलिए एसएमसी कंपनी है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कंपनी बनाना चाह रहे हैं, इज अ प्राइवेट कंपनी, एसएमसी इज कॉर्पोरेट, डेफिनेटली कॉर्पोरेट। एज कॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट। सर ये ध्यान में रखिए, एससीसीपी के साथ जो भी स्ट्रक्चर रजिस्टर्ड होता है वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी हो। एसएमसी में ऐड भी नहीं हो सकता, नहीं आप ऐड चेंज करना चेंज करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए उसका लॉ ये है कि एक ही मेंबर है। मिसाल के तौर पे आज आप मेंबर आप चाहते हैं मैं नहीं रहना चाहता, तो आपने शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन मेंबर एक ही रहेगा। लेकिन देखें ये हो कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन है, सिंगल मेंबर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें एटीएम वही रहेगा, एंटी इंडियन वही रहेगा सर, लेकिन अभी हम आपकी कुछ डिटेल्स हैं, अभी आप अपना डाटा सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी चेंज टू प्राइवेट लिमिटेड। नो डाउट। जैसे आपकी एओपी है वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, आपको नया एंटिटी लेना पड़ता है। सर उसकी गुजारिश ये है, इसमें आपको नया एंटिटी नहीं देना पड़ता, सिर्फ एफबीआर के जो उनका जो डेटाबेस है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है, आपके कंपनी का सिंगल मेंबर से प्राइवेट हो गई, आपने एफबीआर को बताना है हमारे डेटाबेस से डाटा एक्सेस करेगा और वापस सर्विस में अपने डाटा में पहले एससीसीपी में सिंगल मेंबर से प्राइवेट करवाएंगे, फिर उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं ईओपी, देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है, जब भाइयों कहते हैं अक्सर हमसे कहते हैं तो देखो जैसे ईओपी बनाई हुई है, प्रॉब्लम ये है कि ईओपी हैज नो लीगल स्टेटस। मैं अपना एंटी क्या करता हूँ, मेरा इंडिविजुअल एंटी है, मैंने तारिक रशीद मिल्क शॉप डाल दी, देखिए ये आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट है, ये लीगल कन्वर्जन नहीं है। लीगल एंटिटी हमेशा वो है सर जो हमेशा एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, उसी कन्वर्जन जो हम मर्जी कीजिए, आप प्राइवेट बनाइए, आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिंगल मेंबर में कीजिए, हो जाएगी। आपकी प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक कंपनी में जाना चाह रहे हैं, पब्लिक कंपनी बना लीजिए, पब्लिक को वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि एओपी है वो आपका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, सिंपल एक इंसान है, नेचुरल पर्सन है। जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी अलग चीज है, आप उसके डायरेक्टर है, कंपनी सर एंटिटी है जो आर्टिफिशियल पर्सन है। एओपी में ये कॉन्सेप्ट कंपनी है, अपने मालिक नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। किसी का एजेंट। होती है आपका रिसोर्स तो ये सर हमारा एओपी है, उसका ये कंसेप्ट है कि अगर कोई अगर डिजाइन करता है एक होटल नहीं ऐड की बात नहीं, मैं साथ तौर पे मैं एड्रेस कुछ बता रहा हूँ या मैं कोई अपने नाम के इंडिविजुअल नाम चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं अपडेट कर सकता हूँ,
अल्टीमेटली अगर मेरा अपना एंटी है उस पे मैंने कोई भी एंटरप्राइज नाम डालना तो आई कैन डू इट, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो आपका इंडिविजुअल जीता जागता स्ट्रक्चर है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हमारा ये कि वहाँ पे एंटी जब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को इशू होगा तो वो इंटेक्ट रहता है। आप कहीं चेंज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके एफबीआई जाते हैं, वो आपको अपडेट करते हैं। ये इसमें पहले जो प्रॉब्लम आई थी ना, मुझे ना होने के लोग योगी को प्रेफर कर रहे थे, उसमें था टैक्सेशन का एक बड़ा फैक्टर था, डुअल टैक्सेशन जो थी, डिविडेंड के ऊपर करंट टैक्स का कंपनी ज़्यादा टैक्स देती थी, फिर डिविडेंड के ऊपर शेयर होल्डर टैक्स देता था। एओपी के अंदर ये था कि एओपी सिंगल टैक्सेशन था, एओपी टैक्स देती थी और उसके बाद शेयर फ्रॉम एओपी जो ना वो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, कोई भी नहीं है। अब लेकिन एओपी के ऊपर टैक्स का स्लैब इतना बढ़ा दिया उन्होंने, हम ये चाह रहे हैं सर, देखिए ऐसे हम ये चाह रहे हैं कि अब तो लोगों को आना चाहिए ना। वो आप बात वो असल में करने वाली बात वो है कि जो वजह थी एओपी में रुकने की लोगों की, जो टैक्स के सामान जो आज तक ऑपरेटिंग करते रहे और वो हकीकत भी वही थी कि यहाँ पे ना एसेट मेकिंग, एक चीज़ हमें दैनिक तौर पर सोचनी पड़ेगी कि जो एसेट बिल्डिंग है ना वो कंपनी के नाम पे होनी है। हाँ, डिविडेंड के ऊपर अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो भी आप बचा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर अपने पैसे को खुद अपने पे खर्चती है तो डिविडेंड नहीं देगी। अगर मेरी कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, तो अगर हम इसको इलस्ट्रेशन बनाते हैं, थोड़ा सा मैं आपका काम बताऊँ, 45% आपने टैक्स दे दिया एओपी के ऊपर, यहाँ पे आपने 29% टैक्स देना है कंपनी के ऊपर, फिर 15% आपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है। और इस साल से पिछले सालों में तो वो 35% था, तो वो कंपनी के ऊपर टैक्स देना बनता। लेकिन अगर मैं 29% टैक्स देता हूँ और जो मेरा नफा है उसको मैं कारोबार में ही री इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कारोबार के नाम पे ही जमीन खरीदता हूँ, उसके ऊपर कारोबार बिल्डिंग बनाता हूँ, मशीनें कारोबार के नाम पे खरीदता हूँ, कारोबार को वसी करता हूँ, तो खर्चा कारोबार के अंदर ही हो गया ना। एसेट बिल्डिंग जो है वो कारोबार की हो गई है, तो डिविडेंड तो मुझे आना ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, मैं गाड़ी लेनी है अगर मैंने, तो मैं कंपनी की गाड़ी लूँगा, मैंने तो गाड़ी चलानी है ना, अपने नाम में लेके क्या करनी है, उसका एक्सपेंडिचर के अंदर अगर मैंने लीज पे लिया तो लीज रेंटल क्लेम करेंगी कंपनी प्रॉफिट लॉस के अंदर, अगर मैंने फुल पेमेंट पे किया तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट लॉस में कंपनी क्लेम करेगी। वो खर्चे कंपनी के बन रहे हैं एंड उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, वो भी आपका खर्चा। जितने आपकी कंपनी के एसेट ज़्यादा होंगे आपको उतनी डेप्रिसिएशन मिलेगी। आपने जाती नामों के एसेट खरीदते हैं वो आपकी डेप्रिसिएशन नहीं, उसको आप उसकी डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। अब बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको हम सबको सीखनी चाहिए और हम उसको कर नहीं रहे। इस साल से होना मेरा ख्याल है आपके पास लोग बढ़ेंगे, नहीं, हम ये चीज़ें हमारे साथ सीखेंगे। सर देखिए सर बेसिकली ना एससीसी जो टैक्सेशन की मेथड है दूसरा हम लोग ही समय से डील करते हैं। एससीसी का एक डिफरेंट एफेक्ट है, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट का डिफरेंट एफेक्ट है। हाँ, ये आपके पास सही है कि उनको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो फिर आपको खुद से ही मतलब वो चीज़ें सारी करनी है कि आपने। लेकिन सर एक और बता रही है कि देखिए टैक्सेशन एक कॉन्सेप्ट है, देखिए किसी कंपनी की लाइफ में या इंसान के बिजनेस लाइफ में टैक्सेशन एक कॉन्सेप्ट है। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, 5% ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए आपकी एक गुडविल, देखिए लोगों के इदारों की गुडविल अरबों रुपए की है, आपको देखिए बाकी फैक्टर्स को भी देखना है ना। एक कॉन्सेप्ट ठीक है, आप 5% 7% बचा लेंगे और भी आते हैं, लेकिन आप चीज़ देखिए आप जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं। एक कॉर्पोरेट एंटिटी आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एंटिटी है, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसकी झगड़ों से दूर देखिए, उनके इंडिविजुअल आपके ऑब्लिगेशन से हटके देखिए। ऐसी चीजें हम नहीं कर रहे। देखिए जितनी यंग जनरेशन है ना वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझती है। मैं तो सुन भाई से भी यही बात की कि दो चीजें हमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। देखिए एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल सैनिटेशन दे सकते हैं, जहाँ पे जरूरत है आपको घर में बैठे हम आपको सैनिटेशन देते हैं। लेकिन जाहिर है चैम्बर ऐसी जगह है जो बिजनेस हब है,
मैं तो असल में यही कहा था कि देखिए मैं हैरान इस बात पे हूँ कि 200 कॉर्पोरेट सिर्फ है, कॉर्पोरेट या 500 लगा ले कंपनीज होंगी, यही होगा ना, इतना कितना होगा। नहीं 200 से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा ये अब हम ये चाह रहे हैं कि देखिए वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, आप इस तरह फुल फ्लैश कैंपेन लॉन्च कीजिए कि जिन्होंने जिनका तरीका, जो शायद डर रहे हो कि यार अब कंपनी कौन बनाएगा, लॉयर 50,000 लेगा, फीस 7,000 रुपए। एक्चुअली जो मेन रीजन है आपकी अनअवेयरनेस है। हाँ ये सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसको जरा सीसी का पता नहीं है। पता नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि लॉयर्स जो है ना सर, लॉयर्स का एक डिफरेंट अपना इंटरेस्ट है। देखिए कंपनी की फीस 7,000 वो 50,000 मांगे, यंग बच्चा कहाँ से देगा? नेचुरल सी बात है सर, एक मेरा बेटा है जिसे आपको करना है, वो कहता है मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो 50,000 रुपये सुनता है लॉयर की फीस, को कहाँ से देगा? इसीलिए हमने इसको इतना इजी रखा सर, मैट्रिक का स्टूडेंट होना, अगर आप इस पूरे आप लोग जानते हैं इस प्रोसेस को, मैट्रिक से ज्यादा की जरूरत नहीं है डाटा एंट्री। तो घर बैठे आधे घंटे में आप ओरिजिनल गवर्नमेंट की कॉस्ट से 5,000 उससे कंपनी बना लेते हैं। लेकिन ये फिर मैं ये करूँगा सुन यार वैसे कि आप जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन लॉन्च करें, अगली दफा हमें बुलाएं और एक हमें बुलाएं, आप यूनिवर्सिटी से 200 ग्रेजुएट्स को बुलाएं, आप अपने शहर से 500 लोगों को बुलाएं, एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव अब लॉन्च करें, आप जब बुलाएंगे हम आएंगे यहाँ जिसको सर एक पता है मस्जिद कंपनीज बनाए नो सेक्शन। दूसरा हमारी गुजारिश है कि अगर आप ऐसा अरेंज भी कर लें, ऐसी डेट रख लें, असल यार भाई बैठे हुए सारे आप लोग बैठे, कि जितने लड़के आना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर आना चाहता है, वो ये हमारे हम यहाँ पे बना, उनको डाटा एंट्री करवाए कंपनी बना देते हैं। जी बिल्कुल सही है। स्टार्टअप है यहाँ पे, अब बुला लें सर, एक डेट हमें बताएं कि इस डेट आना है, आप 2 माह 3 माह आप उन्हें कहें इस डेट पे सारा एंटरप्रेन्योर गुजरांवाला का आ जाए, जिसको जो डाटा एंट्री करना है हम आपको दे देते हैं, हम बैठे हुए हैं। जिनके नाम रिजर्व हो रहे हैं, जो आप नाम रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, रिजर्वर्स में आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे नाम रखते हैं जो लॉ के परमिट, वहीं पे यहीं पे बैठे बैठे गाइडेंस देते हैं, वो यहीं पे उनको देते हैं, यहीं पे बैठ के उनको कंपनीज बनवाते हैं। आप पूरा गुजरांवाला में जितने 200 250 300 जो एंटरप्रेन्योर जो कंपनी बनाना चाह रहा है, वो बुला लें आप। मेरा सिर्फ ऐसे है कि आप एक लॉन्च करें कंपनी के लिए, कोई डेट रख लें, आप हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम आ जाते हैं, बैठ जाते हैं सर, सुबह 9 10 बजे आ जाते हैं, पूरा दिन आपके साथ बैठते हैं। जिनको जो नाम की प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इस नाम से कंपनी बनानी है, वो अपने डिपार्टमेंट यहाँ बैठते हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, बताइए यही डाटा एंट्री करवा देते हैं। सर ये स्टेशन करवानी है, लाहौर से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लाहौर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि एक आध बंदा जो है यहाँ पे अच्छा मैं होता पता है क्या सर, ये बोलने तारिक रशीद तारिक रशीद तारिक भाई असल में जो अनअवेयरनेस है ना, वो इस मुल्क को खाई जा रही है। असल सर यही है जो हमें नजर आता है। और हमें मसला पता है कि जब हम नाम सुनते हैं ना, बड़े बड़े नाम सुनते हैं, ये असल में माजी में ये काम एक वक्त था जब बैंक में अकाउंट खोलना भी था ना, आजाद था सर, एक अजाब था, नो डाउट। ठीक है। फिर कोई चीज़ आपने कोई अकाउंट अप्लाई करना, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आज एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था, तो मैंने वो बैंकर को फ़ोन किया कि मैंने करना है यार, उसको प्रदर्शन का भेजो जो भी कर, कहता था मैं आपको ना एक लिंक भेज देता हूँ, SMS करता हूँ, तो आप उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच होगी, एक अदर डॉक्यूमेंट और अटैच होगा, वो अटैच कर दें तो आपको ईमेल की कंफर्मेशन आ जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा, आपको उसमें बाय यस अपनी कॉन्सेंट देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर नहीं होता तो मैं आपको परसों करना भी। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, ये आज सुबह मैं कहा मुझे लिंक भेजा, उसने लिंक भेजा, मेरे 15 मिनट लगे, मैंने सारा आपको फाइल कर दिया, वो एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो गई है। पॉइंट ये है कि मुझे एक चीज़ का नहीं पता था, मेरे लिए वो इससे बड़ी चीज़ थी, यही सर हम चाह रहे हैं, पता चल गया, अब मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसान चीज़ है। हम तो सर ये गुजारिश कर रहे हैं कि फोरम है यार, फोरम है यार, इसीलिए हम कह रहे हैं ये फोरम एक ऐसा फोरम है जिसपे इन्फॉर्मेशन अगर 2 लोगों को 10 लोगों को आप लोग पहुंचाएंगे ना, तो वो सीधा गलत है, मैंने इनको बतानी है, इन्होंने उनको बतानी है। सर। आप यूनिवर्सिटी से आप कोऑर्डिनेट करें, आप अपने बाकी जो इदारे से कोऑर्डिनेट करें, मैं ये कर रहे हैं सर, आप 200 लोगों को बुलाइए यहाँ पे, कहते हैं जो कहते हैं कि हमने आज कंपनी बनाई है, हमें बता दें, जब भी आप कोऑर्डिनेट कर लें, हम यहाँ बैठे हैं सर, सुबह से आए हैं। सर ताकि बाद में मैं कंपनी बना लूँगा ना, या अतीक साहब बना लेंगे, ठीक है, अतीक साहब थोड़ा रोका थे जब आप बात कर रहे थे ना, बता रहे थे, इन्होंने अपने हाथ से कंपनी बना ली है,
जब ये अपने हाथ से कोई बंदा कंपनी बना लेगा ना, कैसे साहब बैठे हैं, हाँ ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है। बंदा पूछेगा यार मैं कंपनी बनानी है, हाँ तो ये कहेंगे कि यार गाली तो नहीं, हाँ मैं हमसे दूंगा बना देना। ये सारी आपने गाइड बात है कि हम हमारे ही एम्प्लॉय को आप गाइड भी कर देंगे, अब अवेयरनेस हो जाएगा। अब आप कंसल्टेंट को कहेंगे, अब एक कन्वेंशनल किस्म का वो ट्रेडिशनल बंदा, आप उसको कहते हैं मैं कंपनी में नहीं हूँ, यार मैं कोई बंदा लग के देख रहा हूँ, मैं उनको हाँ अभी समझे ना। ठीक है, वो उस बंदे को ढूंढे, यार मेरे पुराने दोस्त है ना, अतीक साहब ने कंपनी बनानी है, ते ਉਹਨੂੰ जरा गाइड कर। एक तो मैंने इसको मैसेज कन्वे कर दिया कि ना मुझे कुछ पता है, ना अतीक साहब को कुछ पता है, मतलब बंदा का एडवांटेज पे है। ठीक है। अब मैंने उसको ये बात समझा दी है इस मैसेज से कि मैं भी फारग हूँ, वो भी फारग है, अब तुम पैसे झाड़ दो कहीं से। अब वो अतीक साहब को फोन करता है, अतीक साहब को कहता है कि ना आप मेरे पास आए, फलाने टाइम पे आइएगा, बंदा भेजिएगा, ये कागज वो ना कुछ 10-20 कागजों। अब अक्सर हमारे ना आपसे कह देगा कि मेमोरेंडम बनाना है, वो कह देगा कि मेमोरेंडम बनाना है जो कि लीगल सब्स्टिट्यूशन है कंपनी का, वो आपसे कहेगा इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, हालांकि हमने हमारा सिस्टम जनरेटेड है। और 120 सेक्टर के मेमोरेंडम वेबसाइट पे डाले हुए हैं और आप एक क्लिक पे सिस्टम ऑटो जनरेट कर देता है मेमोरेंडम। आप किरायानामा मांगते हैं, अक्सर लगे होते हैं, हम कहते हैं नहीं किरायानामा लाइव का लीजिए, वीडियो का लीजिए, वेबसाइट पे डैम रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, आर्टिकल जो है वो नहीं है, कॉमन सर आर्टिकल सिस्टम जनरेट करता है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम जनरेट कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सिस्टम रहे। का कुछ जनरेट आप एक डेटा और फॉर्म आते हैं ना भाई, ये भेजिए फटाफट चाहिए। और हमारी कंपनी का सब्सक्राइब भी नहीं होती है, पाकिस्तान में कंपनी सब्सक्राइब नहीं होती। सर ये तो है ही परफेक्ट सिस्टम। दुनिया के अंदर तो कंपनियों में साल के बाद या 2 साल के बाद Renewal का concept है। कॉन्सेप्ट है, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर बंदा देखिए हाँ देखिए जनरेशन जनरेशन है, वो फाइल करते रहे तो एक्टिव, अगर आप उसको इनएक्टिव करवाना चाहें वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं वो आपने से रिटर्न नहीं सबमिट कर रिटर्न नहीं करेगा ना, उसमें कोई ऐसा सर परपेचुअल हम क्यों कहते हैं कि ये परपेचुअल सक्सेशन है। तो हमारी तो सर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको जरा कॉम्प्रिहेंसिव लेके जाइए। आप अंदाजा कीजिए, मैं खुद चलाता रहा हूँ इस्लामाबाद में पूरे दिन में। हम लोगों ने 2017-18 में इस्लामाबाद जो हमारा रीजन था वो 3rd पोजीशन पे था, लाहौर फर्स्ट पे था, कराची सेकंड पे था। हमने यही स्ट्रेटेजी अपनाई जो आज मैं सोच रहा कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ, हमने इस्लामाबाद को नंबर 2 पे रखा कराची से आगे। कैन यू बिलीव इट, इन कंजेस्टेड सिटी हमने इतनी फास्ट ट्रैक इतना फास्ट ट्रैक पे हमने डाला है। इस वक्त इस्लामाबाद रीजन दूसरे नंबर पे लाहौर के बाद नंबर ऑफ कंपनीज, कराची पूरा इंडस्ट्रियल सूबा है पूरे का पूरा कर ले, उसके बावजूद लेके तो यही है सर। नंबर 1 इस्लामाबाद नंबर 2 कराची नंबर 3 नंबर ऑफ कंपनीज के लिहाज से लाहौर टॉप पे। कराची पहले इस्लामाबाद से सर आप देखिए इस्लामाबाद में अभी कह रहा हूँ, देखिए वो मेरा रीजन इलाका नहीं है, बिलोंग टू उकाड़ा। अब मैं ये कहता हूँ कि उकाड़ा के गांव से अगर अक्सर कंपनी आती है, मैं उसको कॉल करता हूँ स्पेशल, अरे यार कमाल किया है आपने यार, वो लड़के आसपास बैठे थे कहते थे ऐसा कॉल कर रहे हो तुसी, अरे यार मैं इस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ गांव में बैठ के इस बंदे ने एक ऐसे तो उसको वो कहते हैं गाली तो नहीं सर कंपनी बढ़ती, दिस इज द बेसिक रूल। मैं आप लोगों से ये गुजारिश है, हमें आप बुला लें, आप सुबह कहेंगे शाम कहेंगे तो 200, 250, 300 लोग आपके पास हों, आप एक कैंपेन चलाएं, यहाँ बैठते हैं सर बना के आपको देते हैं। सर इसके अलावा ना हमारी इंटीग्रेशन, जैसे एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन, हमारी एससी के साथ इंटीग्रेशन, जहाँ में जो करती है तो जो डाटा ऑप्शन है, अगर डाटा एससी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो डाटा आप ऐड करेंगे, इन्फॉर्मेशन उधर इंटीग्रेशन के थ्रू चली जाएगी और आपको एससी का सर्टिफिकेट भी इशू देगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह एफबीआर का तो आपको अंदाजा है सर, एफबीआर में आप लोग जाते हैं, हाउ इज डिफिकल्ट टू गेट द एनटीएन सर्टिफिकेट। हमने इसी अजाब को ये कह रहे हैं कि कंपनी बनी है, सर्टिफिकेट साथ में है या देखिए इससे ज्यादा हमने बड़े लड़ के काम किया लोगों से। हम लोग ये ज्यादा करते हैं ना कि आपको अंदाजा है सारी चीजों का। देखिए इस इतना डराते हैं कंसल्टेंट की बात, अगर ये ऐसे नहीं किया, ये वाला कागज चाहिए, ये चाहिए, ये हो जाएगा। सर हम तो आपको डायरेक्ट ऐसा मेरी बात सुने, वो बेचारे क्या करें, उनकी रोटी पे रोटी वो अपनी रोटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे। बात ये है कि अब असल में ना कौन सी बात सुने, ये जो मशीन है ना इसको अगर आप सही इस्तेमाल करें तो प्रोडक्ट है, नॉन प्रोडक्टिव इस्तेमाल अब करते हैं तो नॉन सुबह से लेकर शाम तक लोग वो फेसबुक मीडिया पे, फेसबुक, टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसका आधा टाइम अगर हम प्रोडक्टिव स्पेंड करें
ٹھیک ہے. دیکھیں اب دیکھو اس نے آپ کا اسکینر ختم کر دیا, اس نے آپ کا کیمرہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کے بہت ساری چیزیں, اب آپ لیپ ٹاپس کا آپ ای میل آپ اس سے کر رہے ہیں, ڈیٹا آپ اسٹوریج کر رہے ہیں, ہر چیز آپ فون میں کرنا شروع کریں. لیکن اس کا رائٹ ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ناؤ ہی اینڈر کی وجہ میں بھی ورک اسمارٹ, ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسمارٹ ورک کریں. اسمارٹ ورک کیسے ہوگا کہ آپ تھوڑے کام کیا لائف کے اندر زیادہ کام کیسے لے سکتے, زور سے نہیں اپن. اب میں تو چاہتا ہوں, میں انٹرسٹ ہوا, میں چاہتا ہوں مجھے کس طرح ہے کہ میں وہ آپ بروشر پر آپ نے چھپائے وہ سر بالکل ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں. تجربے کے طور پہ ہم سر یہ چاہ رہے ہیں, بلکہ اسد بھائی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بزنس سینٹر ہمارا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, پورے پاکستان کی جو رجسٹریشن ہے اس پر, چاہے وہ لاہور کی کمپنی ہے, چاہے کراچی کی ہے, چاہے آپ, وہ ہمارے بزنس سینٹر اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہوتی ہے. ہم اپنی پوری ٹیم کے نمبرز شیئر کر رہے ہیں آپ سے. 9 to 5 ہو, اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہے آپ رات کو واٹس ایپ کر دیں, جس بندے کو جہاں پرابلم ہے وہی آ جائے. بلکہ سر اس میں بزنس سینٹر جو اے بی سی مختلف بزنس سینٹر بنے وہاں کاؤنٹر ہونا چاہیے. انکیوبیشن وہ سر دیکھیں اسلام آباد میں تو ہماری کانسٹنٹ یہ رہتی ہے کہ جتنے ان کے یونیورسٹیز کے انکیوبیشن سینٹرز ہیں ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. 000-650-6351. سر وزٹنگ کارڈ کے علاوہ ہم نا پورے سیل نمبر شیئر کر رہے ہیں, ناٹ دا آفیشیل نمبر. آپ کا بھی پرویز صاحب جو ہے وہ نیم ریزرویشن کے آپریشن آفیسر ہیں, پورے پاکستانی دیکھ رہے ہیں. میں کارپوریشن کو دیکھ رہا ہوں نیم ریزرویشن, یہ نام آپ نے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کی, میرے پاس ساری کمپنی بننے کا یہ پروسیس. محمد طارق یہ سارے مطلب سر اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے نام رضا ہم سے کرواتے ہیں, اس کے بعد جو لائسنسنگ کا پروسیس ہے ہمارا لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ, کیونکہ اس کے اندر پراپر فٹ کرائٹیریا ہے وہ فزیکل پروسیس, اس میں ٹائم لگتا ہے. کیونکہ سائڈ ڈائریکٹر کا این جی او کا آپ کو پتہ ہے آپ معاملہ سمجھتے ہیں, لیکن جہاں تک اگر آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو رجسٹریشن میں وہی پروسیس 4 گھنٹے کا ہمارے پاس پروسیس. اگر آپ نے لائسنس مل گیا تو رجسٹریشن کا پروسیس 4 گھنٹے میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اپنے سارے سیل نمبر آپ لوگوں سے زیادہ شیئر کرتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں, ہمیں چاہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے میں نا ذرا اس کو ذرا فل صحیح لیول پہ کھیلیں اور پھر دیکھیں, اور جہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے ایز اے ٹیم بلا لیں ہم ایک دن سے, یا صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں جتنے 200-250-300 لوگ جو بھی آپ کے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہیں, چاہے آپ کے بزنس کمیونٹی ہے, چاہے آپ انٹرپرینیور ہیں, آپ اپنے پلیٹ فارم سے کریں. ظاہر ہے آپ کی ممبرشپ آج کتنی ہے, 20,000 ہے سر, لاکھ میں لے لیں. اگر ہم 127% لاکھ سے 2.5 لاکھ میں کمپنیز لے گئے ہیں انسپائرڈ آف آل دیز ریسٹرکشن, تو آپ لوگ اپنا شہر ہے. دیکھیں ہمارا شہر نہیں ہے, ایسے سٹیز اوور آل کنٹری میں نہیں. محلے میں ایک کمپنی, سر محلے میں اگر ایک کمپنی بن جائے گی نا پورا محلہ کمپنی بنا لے گا. یہ سر دیکھیے یہ تو صاحب آ نہیں کہ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے لوگ, یہاں میرا والا میں محلے میں کام ہوگا تو ساتھ والے کو پتہ ہے سر کہ ایک محلے میں اگر 1-2 لڑکے کمپنیز بنائیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا ہم سائٹ الٹیمیٹ ہی کر دیں گے. یہ سر ہم سارے نمبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. جی 03346506351 سر ہمارا نمبر پی سی ہے سر. نارملی یہ سارا دن چلتا ہے جناب, پی ٹی سی نمبر وہ کہتے ہیں نہیں سر بزی کی ایشو نہیں ہے سر. آپ میں ریکویسٹ ہوگی کہ بعض اوقات کیونکہ آپ میٹنگ میں یا اگر تو آپ واٹس ایپ کر دیں, یہ میری کیوری ہے, وہی میں کلائنٹ کیوری, کیونکہ
हमें एक डेस्क यहाँ पे बनाना चाहिए, हमें एक बंदे को यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए। खाली ट्रेन हमारा ही बंदा हो जाए, हमारा बंदा ट्रेन हो जाए, ये आप एक डेस्क बनाए उस पर हमारा एक बंदा ट्रेन हो जाए। जिस बंदे ने काम किया है कि जिस बंदे ने कंपनी बनानी है ना वो चैम्बर आ जाए, हम उसको कंपनी बना दें। बिल्कुल वो बंदा उसको कंपनी बना के दे। सर वो ट्रेन कर देते हैं आपको ना, आपके पास नंबर है, आपको उनको डायरेक्टली बिठा दें, आपका जो बंदा है आप फोन पे उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, हम आपको पूरा प्रोसेस नहीं, बताएंगे। एक्चुअली ना काउंटर जब बनेगा ना तो पता होगा कि गुजरावाला के अंदर आपकी जो है ना एक एक्सेसिबिलिटी है, फोन करने में से नहीं मैं उस बंदे ट्रेनर की बात कर रहा हूँ सर, मैं वो लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। आप अपना बंदा बिठाइए सर, उसको पूरा प्रोसेस 10 मिनट में आपको करके देगा, वो ट्रेन करके हम हाजिर हैं जिसको भी करना चाह रहे हैं सर। सर मैं कह रहा हूँ कि आप ड्रीम नहीं, ये 10 से ज्यादा मिनट का काम नहीं। और उसके बाद वो लोगों को ट्रेन करे यार, अपनी आप जाके बना। बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए सर चैंबर में ना हर बंदा आता है, हर तबके का बंदा आता है। एक बैनर आपका बाहर लगा हो, कंपनी कॉर्पोरेशन आई नीड आई फ्री फी पे करें, दैट्स इट सर। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर 20-30 हज़ार का थोड़ा मीडिया कवरेज करें, थोड़ा सा डालें। ये 20-30 हज़ार का बढ़ाना तो मुझे लगता है सबको बहुत सब। और अगर आप है तो हाजिर है सर, तो सजेशन आप देना चाहें हमें, आप आपकी तस्वीरें अच्छी शेयर कीजिए। हम चाह रहे हैं कि अपने अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने सीसीपी पे भी पता लगे दुनिया वाला चैंबर है, ये सारी तस्वीरें आप हमसे शेयर करें, मदद आपके भी, ताकि हम वहाँ पे अपने भी डालते हैं सर कि हम ये चाह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने बाद का 20-30 हज़ार कंपनी आप दें, बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं ना सर समय नहीं आते। जी आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं 2020 से सर, और 127 इसी से बढ़ाइए। लास्ट मंथ में हाईएस्ट फिगर पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पिछले महीने बढ़ी है 3,500 टोटल 2 लाख 50,000। ये लास्ट ही सर 2-3 साल का चला कि माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, लेकिन अभी भी इंटरैक्टिव सेशन रहा है। शुक्रिया फैसल साहब, बड़ा जबरदस्त इंटरैक्टिव सेशन रहा है। और तारिक रशीद साहब और परवेज इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल द वे लाहौर से आए हमारे पास, और हमारे मेंबर्स के लिए बड़ी सलामा से गुफ्तगू हुई। और मैं समझता हूँ कि सेशन के बाद हमारे काफ़ी दिमाग खुले हैं कि कंपनी फॉर्मेशन जो है वो इट्स मच ईजियर प्रोसेस बनिस्बत जो लोग हम समझ रहे थे, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में समझा जाता था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एक पहला पार्ट होगा मेरा ख्याल है। और जैसे बात ये है कि हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें ट्रेन करें और यहाँ पे अपना डेस्क फॉर्मेशन के लिए भी काम करें। आपका एक बंदा अगर यहाँ पे इनिशियली 6 महीने के लिए भी अगर आ जाता है तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी होगा। उसके बाद फिर हम आपके बंदे को रिलीज भी कर देंगे, वो किसी और चैम्बर में जाके काम कर सकता है। ये आपका एक मॉडल डेस्क भी बन जाएगा और आपके नाम से हम उसको SCCP डेस्क के तौर पर करेंगे, आपकी भी प्रमोशन होगी। और डेफिनेटली हम यहाँ पे जैसे अफसर साहब से बात में कर रहा था कि हमें चाहिए कि हम लोगों की कंपनी फॉर्मेशन में हम फैसिलिटेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर हम ये कर जाते हैं तो जो आप नंबर्स कह रहे हैं तो ये परसेंटेज में नहीं है, शायद ये टाइम्स में ग्रो कर दें, मैनी फोल्ड में ग्रो कर दें। आने वाले साल 2 साल के अंदर आप देखेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कंपनियाँ फॉर्म हो गई हैं। और जो पोटेंशियल है, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। वो शायद सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपनी कंपनियां खुद भी बनाना है। अगर आ जाएंगे तो लोग शौक में अपनी कंपनी बनाए, शौक में कारोबार शुरू कर लें, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे तो उनमें से बहुत से 10-20% भी सक्सेस मिल जाए, उनको ग्रोथ के मिल जाए, तो वो इकोनॉमी के अंदर बड़ा एक अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, एक सब्सटेंशियल नंबर क्रिएट कर सकेंगे। तो thank you very much sir, all the way coming to Gujranwala Chamber of Commerce. So on behalf of President and the Executive Committee, I thank you all. So looking forward to see you again. बहुत बहुत शुक्रिया। एक आसान में आपके लिए शील्ड है, आप on behalf of SCCP हम आप लोग को भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उस्मान साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, आप सब टीम मेंबर्स का आपकी शील्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि चैम्बर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि कॉर्पोरेशन जो है इसको इंक्रीज करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।